Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young's Mind Academy. I am Anjali Malviya. So in today's lecture we are going to discuss about the second type of animal tissue, that's the connective tissue. Okay, so just a brief what we have studied so far. So in the animal tissue, in the last lecture I have told you that animal tissue are further divided into 4 types, right? They are first one epithelial, the second one connective, the third one is your muscular, and last is your nervous. Okay, so we have completed the epithelial tissue. Okay, so if you have not seen the previous classes, previous videos, then please do go and watch. Okay, so epithelial we have covered. Now from today we are going to discuss about the connective tissue. Okay, yes, connective tissue by the name itself, इसका काम क्या होगा इस टिश्यू का? To connect, right? So इसका काम क्या है? To connect the body organs. Okay, and how it connects? और ये क्या करेगा? क्या कनेक्ट करेगा? Bone to bone, you can say it connects bone to bone to muscles or muscle to muscle. Okay, तो इसका काम क्या है? Connection का, by the name connective tissue. Okay, so yes, it connects various body organs with each other. Connective tissue connects with each other. Okay, and what it connects, as I have told you, it connects 2 or more bone to each other, muscle to bone, or bind different tissues together. Okay, two or more bone together, or muscles to bone, or different tissue together. Okay, and one more important thing, it is also helpful, it also provides support. Okay, support. ठीक है, do not get confused, by the name it's very easy. Connective, that means it will connect, it will link the different body organs, and it connects 2 or more bone together, or muscles to bone, or different tissues together. Okay, and they also provide support. Yes, so
कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की बात कर लेते हैं कि सेल कैसे होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द सेल्स, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये कैसे हैं? दे आर लूजली पैक्ड. ओके, नाउ यहीं पे आपको एक मेजर डिफरेंस का पॉइंट मिल गया. एपिथेलियल में क्या था? देयर वाज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट. सेल्स कैसी थी? टाइटली पैक्ड थी. बट यहाँ पे क्या है? जस्ट ऑपोजिट है. सेल्स कैसी हैं? लूजली पैक्ड है. दैट मीन्स उनमें स्पेसेस होंगे इन बिटवीन देम, ठीक है. तो ये एक मेजर आपका पॉइंट हो गया डिफरेंशिएशन का. देन cells are living, okay, cells are loosely packed, cells are living, yes, and are dense or rigid in nature. ठीक है, these are important points, so just keep this also in your mind. They are loosely packed. This is a very important point for your differentiation. Loosely packed cells are living, they are dense and rigid in nature. Now this connective tissue are further divided, are further classified into various types. ठीक है, जस्ट लाइक एपिथेलियल. एपिथेलियल में क्या देखा था? उसके भी सब पार्ट्स थे, वो भी डिफ्रेंशिएट हुआ था, वो भी फर्दर डिवाइडेड हुआ था. उसी तरह से कनेक्टिव भी फर्दर डिवाइडेड है. ठीक है, सो जस्ट नॉट टू मेक यू कंफ्यूज, आई हैव मेड सम पॉइंट्स, ठीक है, जिससे आपको बहुत ईजिली आप लर्न कर सको, उसको कंफ्यूज ना हो, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स आई अंडरस्टैंड. तो कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड है. कैसे डिवाइडेड है? लेट्स सी. यस, तो पहला जो टाइप है या पहला जो फॉर्म है वो है आपका वैस्कुलर या फिर फ्लूइड टिश्यू. ठीक है, वैस्कुलर या फिर फ्लूइड टिश्यू. नाउ वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, जस्ट बाय द नेम वैस्कुलर यहाँ पे आया है, तो वैस्कुलर हमने पढ़ा है पहले, तो बस एक वैस्कुलर की बात करें. वैस्कुलर का काम कुछ ट्रांसपोर्टेशन से है. वैस्कुलर सिस्टम दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, राइट. और फ्लूइड इज अ लिक्विड पार्ट. तो ये टाइप जो है इस कनेक्टिव टिश्यू का, वो भी कैसा होगा? एक फ्लूइड पार्ट होगा. ठीक है, तो इसमें यस, तो इसमें क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स. ओके, मटीरियल्स सच एज, अब एक बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट हैं. ठीक है, द फूड वी टेक, इट प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिशन, राइट. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स का, सच एज योर न्यूट्रिएंट्स. व्हाट एल्स? हमारे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का भी होता है. हाउ? वी इनहेल दी ऑक्सीजन एंड एक्सहेल दी कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक्सचेंज होगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हेड टू टो हमारी बॉडी में, राइट. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस.
Yes, gases. What else? ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में हार्मोन्स का भी होगा, राइट? ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में हार्मोन्स का भी होगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी होगा. You will study in your higher classes about the excretory system and all. In that you will see कि जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई होता है किडनीज में. किडनीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड प्योरीफिकेशन का काम होता है और उस प्रोसेस में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में. वो एक्सक्रीशन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यू कैन से यूरिन फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दैट्स योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ओके, सो यस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन. नाउ चिल्ड्रन, दिस वैस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड. ओके, दीज आर फर्दर डिवाइडेड. अब मैंने क्या बोला कि ये फ्लूइड हैं, ठीक है, तो मतलब लिक्विड है. तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो लिक्विड है और वो हेड टू टो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है. जस्ट थिंक, हमारी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो क्या सर्कुलेट होता रहता है. यस, यू ऑल गेस इट राइट, इट्स द ब्लड. Right? Blood. And your limbs. What are they? We will study further. But they are further divided into two types, the fluid or the vascular connective tissue. The first one is the blood and the second one is your lymph. Okay? Now just study one by one. Yes. So blood. Blood contains matrix known as plasma. ठीक है, blood contains a matrix that's known as your plasma. Okay, and it also contains some cells, blood cells basically. And blood cells. So these are the components of your blood. ठीक है, these are the components, your plasma, your blood cells. Now blood cells are further divided. You all know RBCs, WBCs and your platelets. Now RBCs, red blood cells, WBCs, white blood cells and your plasma. They are also known as erythrocytes. Okay, leukocytes, the red blood cells are known as erythrocytes, the white blood cells are known as your leukocytes and the platelets are known as your thrombocytes, right? So blood cells contains these three parts. Now study one by one. Yes, so blood cells, first one is your RBCs. RBCs are your red blood cells, erythrocytes. So just keep these words in your mind, terms in your mind, okay? Yes, so RBCs. Now just yes, so this board is taking time, going to take time. Let me explain you like this only. So yes, RBCs, WBCs and your platelets. Now what are RBCs? is your red blood cells. तो red blood cells, red color जो है उनका वो किस वजह से है बेटा? हीमोग्लोबिन की वजह से. ठीक है, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा कई बार जब आप ब्लड टेस्ट करवाओ या फिर अपना परसेंटेज देखो आप अपना रेड ब्लड सेल का, तो उसमें यही आता है कि हीमोग्लोबिन की
उसका कितना आपके पास हीमोग्लोबिन है बेसिकली आपके ब्लड में, उसका अमाउंट जो है वो लिख के आता है। अगर कम है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यस, तो यस, सो योर hemoglobins, and hemoglobins is the iron containing pigments. Hemoglobin is the iron containing pigments, and yes, it gives red color to your red blood cells. And one more important thing कि hemoglobin ही जो है वो क्या करता है बेटा, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने सुना रेस्पिरेशन प्रोसेस में, मैंने क्या बोला, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हो रहा है। हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है ये गैसेस को, ठीक है। यस, ब्लड आरबीसीज, तो इनका काम क्या होगा, दे कैरी गैसेस, राइट। हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, द आयरन कलर पिगमेंट और द रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका बेटा, कैरी गैसेस, ठीक है। नाउ डब्ल्यूबीसीज, WBCs आर योर वाइट ब्लड सेल्स, तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। तो इनका काम है बेटा, इनका काम है इम्यूनिटी में, ठीक है, इनका काम है इम्यूनिटी में, प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है, प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो WBC वर्ड ये याद कर लो बेटा, इम्यूनिटी, ठीक, जस्ट कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, इम्यूनिटी, ठीक। तो ये काम हो गया आपके वाइट ब्लड सेल्स का। नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स योर थ्रोम्बोसाइट्स, इनका काम क्या है, इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनका रोल है इन द clotting of blood. Again in your higher classes you will study about all these things in detail, और आप ये भी देखोगे कि जो प्लेटलेट्स का वर्क कैसे होता है, देयर आर सम एंजाइम्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो जो हेल्प करते हैं बेसिकली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और यू कैन से इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। helps in preventing bleeding, okay, yes। तो ये हो गए आपके आपके फ्लूइड या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पहला है आपका ब्लड, ठीक है, उसके ब्लड सेल्स के 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन RBCs, इट कैरीज ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, ठीक है। देन WBCs, इट प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, दैट मीन्स इनका काम है आपके इम्यूनिटी में। एंड नाउ जस्ट आई विल गिव यू सम एग्जांपल कि इम्यूनिटी में कैसे काम है इनका। जस्ट थिंक कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर जाए जिसके लिए आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं है, आपकी बॉडी के लिए वो एक फॉरेन एजेंट है, ठीक है, वो एक आउटसाइडर है जो कि हार्मफुल है, ठीक है, तो आपके ब्लड में वो एंटर कर जाएगा। तो आपके ब्लड में जो WBCs हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। इनको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में एक
फॉरेन एजेंट आ गया है, एक फॉरेन वायरस एंड बैक्टीरिया वो आ गए हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो ये WBCs एक्टिवेट होके अटैक करेंगी उन्हें, ठीक है, बेसिकली उनसे फाइट करेंगी वो, ठीक है, एंड वो कोशिश करेंगी कि मैं उनको वहीं की वहीं मार दूं, वहीं की वहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, ताकि ये और ज़्यादा हार्म ना पहुंचा पाए बॉडी को, ठीक है। योर प्लेटलेट्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। नाउ हाउ इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, सी, yes, how it prevents bleeding, just for example, these are your vessels, blood vessels, ठीक है, blood vessels, veins, arteries, capillaries, ठीक है, और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें क्या है, आपका WBCs होगा, RBCs होगा, प्लेटलेट्स होंगे, सब होंगे, ठीक है। सो यस, ये आपके RBCs हैं, चलिए मान लीजिए दीज आर योर RBCs आपके ब्लड वेसल्स में, देन सम WBCs होंगे, एंड और क्या होगा इनके साथ साथ, कुछ प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से, सो दिस इज बेसिक योर ब्लड वेसल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और योर प्लेटलेट्स हैं, ये नॉर्मल सी आपकी है। नाउ जस्ट इन केस इन एन इंजरी, ठीक है, या आपको कभी चोट लग जाए तो क्या होता है, आपकी जो ब्लीडिंग होने लगती है चोट लगने से, मान लीजिए, तो आपकी जो स्किन है वो कट होके बीच से उससे ब्लड निकलने लगता है, यस। सो जस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको चोट लग गई है, तो यहाँ से आपका एक कट हो गया है जिसकी वजह से आपका ब्लड निकल रहा है यहाँ से, ओके, यहाँ से आपका ब्लड निकल रहा है। नाउ अब क्या करेंगे प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स आपके ब्लड सेल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, वो सारे वो सारे ये जो येलो पोर्शन है ये आपके प्लेटलेट्स हैं, तो ये जल्दी जल्दी आकर के एक नॉट सा बना लेंगे, ठीक है, यहाँ सरफेस पे इस तरह से सारे यहाँ आएंगे, ठीक है, सारे के सारे इस तरफ आएंगे, क्लॉटिंग की तरफ, जहाँ पे चोट लगी है, इस तरह से वो उसको घाव भर देंगे बेसिकली, ठीक है, तो वो रिपेयर कर देंगे आपकी उस डैमेज ब्लड वेसल्स को, ठीक है, एंड यही काम है आपके प्लेटलेट्स का। दिस इज नोन एज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ हाउ इट हैपेंस, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व, यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, बट फॉर नाउ आप एक एक आउटलाइन ले लो, एक ब्रीफ इसके बारे में समझ लो इस तरह से, ठीक है, तो ये काम है आपके प्लेटलेट्स का, ठीक है, चलो, यस, तो ब्लड हो गया, तो नाउ नेक्स्ट इज योर लिम्फ्स। ये क्या है बेटा, ये सेल जो है, ये फ्लूइड है, वो सराउंड करता है आपके बॉडी सेल्स को, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्लूइड दैट सराउंड्स सेल, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्लूइड दैट surrounds the cell. That means, wait, yes, just for example, these are your cells, okay, cells in your body, okay, and in between them
ये फ्लूइड होगा इस तरह से। ओके, नाउ इनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनका काम है कि मान लीजिए कोई भी फ्लूइड आपके ब्लड वेसल से लीक कर जाए और वो इस तरह से स्पेसेस में इस तरह से यहाँ पे भर जाए, जिसको लिम्फ बोलेंगे। तो इनका काम क्या है कि उस सेल के पास जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन जब किसी भी ऑर्गन को नीड होगी, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को ज़रूरत होगी आपके बॉडी में, तो ये जो लिम्फ्स हैं ये उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स में। कब? जब किसी ऑर्गन को ज़रूरत पड़ेगी, जब किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जो वेसल से हो रही है वो प्रॉपर नहीं होगी, या फिर उनके पास एक्यूरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है ब्लड से, उनको प्रॉब्लम हो रही है या ऑर्गन डैमेज हो रहा है, तो ये लिम्फ्स क्या करेंगे, ये जो लिम्फ फ्लूइड हैं ये वहाँ पे जा कर के उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो यस, चलो लिख लेते हैं अच्छे से इसको। तो it surrounds the cells and one more important thing बेटा, it contains white blood cells. As I have said कि ये क्या करेंगे, जब किसी ऑर्गन को ज़रूरत होगी, जब कोई ऑर्गन डैमेज होगा या उसके पास इनसफिशिएंट अमाउंट होगा न्यूट्रिशन का, तो वो क्या करेगा, लिम्फ फ्लूइड उसके पास ट्रांसपोर्ट करेगा वो अपना फ्लूइड। तो WBCs क्या करती हैं, WBCs contains, it prevents the it helps in immunity, है ना, it prevents the infection, it prevents our body from infection from foreign agent। तो yes, तो ये लिम्फ्स में भी क्या है, सिर्फ आपके WBCs है। तभी इसी वजह से जब कोई ऑर्गन डैमेज होगा या जब किसी ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ की, तभी ये अपना ट्रांसपोर्ट करेगा। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, contains WBCs, ठीक है, do not forget, and not RBCs, ठीक है। WBCs हैं इनमें, RBCs नहीं है। दैट्स वाई WBCs का जो काम है प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, इसी वजह से ये भी जो डैमेज्ड ऑर्गन है, यस, डैमेज्ड ऑर्गन है उनको देंगे ये, ठीक है। Yes, yes. Now we have studied पहला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का। Now इसका एक दूसरा पार्ट, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है जो कि हेल्प करता है, जो कि हेल्प करता है पैकिंग और बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। पैकेजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। जो उसका सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये क्या करता है आपका, सर्व्स इन द पैकेजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसका ये फर्दर डिवाइडेड है। व्हाई आई एम सेइंग इट्स प्रॉपर, बिकॉज इसका काम कनेक्शन का जो है, कनेक्शन का जो लिंक है, जो बेसिक का जो हमने पहले फर्स्ट फ्यू मिनट्स में पढ़ा था इस लेक्चर के, इस क्लास के, कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्शन का, ठीक है, लिंक का, बाइंडिंग का। तो यहाँ पे जो टिश्यूज अभी आएंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, वो क्या करेंगे, वो प्रॉपरली अपना काम करेंगे, उसका काम ही रहेगा पैकेजिंग और बाइंडिंग का, ठीक है। नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड, यस, इनका भी डिवीजन हुआ है एरियोरल एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है।
यस। एरियोरल। नाउ एरियोलर टिश्यू क्या है? इट लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन योर स्किन एंड मसल्स। Skin and your muscles, and also around blood vessels and nerves in the bone marrow. इनकी लोकेशन जस्ट रिमेंबर दिस कि एरियोलर टिश्यू का काम क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स और ऑल्सो इन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन बोन मैरो, ठीक है, इन बोन मैरो, ठीक है। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स ऑल्सो इन योर माइंड। नाउ इट इज लूज एंड सेल्युलर टिश्यू। ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था कि लूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। जस्ट रिमेंबर इट्स लोकेशन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अबाउट दिस लोकेशन। Now they are further they consist two types of fibers, you can say, okay. They are further divided or they consist two types of fibers. The first one is the white collagen fiber and the second one is the yellow elastic fiber. White collagen fiber, second one is the yellow elastic fiber, okay. So just keep this in your mind. Now the second one is the adipose tissue. Adipose. Now have you heard this word adipose before? Adipose का मतलब कहीं पढ़ा है? adipose के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसका मतलब something fat से related है, ठीक है। So these adipose tissues are your fat cells, ठीक है। fat cells. Now सेल्स का जो है आपके शेप है ये कैसा है? राउंडेड या फिर ओवल? और योर ओवल, ठीक है। एंड वेर इट्स लोकेटेड? इट लोकेटेड बिलो द स्किन एंड इंटरनल organs, ठीक है, located below the skin and in between your internal organs. And in between internal
ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कई बार ये डिफरेंस पूछ लिया गया है, एरियोलर टिश्यू का डिफरेंस और एडिपोज टिश्यू का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया बेटा, ये फैट सेल्स हैं। सेकेंड डिफरेंस, इसका लोकेशन दोनों का लिख देना, ठीक है, लोकेशन लिख दीजिएगा, ओके। यस, इसका फंक्शन क्या है, इट्स अ फैट रिजर्वॉयर, ठीक है, फैट को स्टोर करता है, कीप्स ऑर्गन इन पोजीशन। फंक्शन है आपका स्टोर फैट एंड कीप्स ऑर्गन इन पोजीशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है, दिस वर्क्स ऑल्सो एज एन इंसुलेटर, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, फैट स्टोर करता है, इस वजह से ये एक तरह से इंसुलेटर का काम भी करता है, ओके। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ. If you have any confusion, any suggestion, anything, just comment down below in this video comment section, and I'll see to it. And in the next lecture we are going to discuss that first, and then we'll continue this, okay. So yes, till then, just take care, stay safe, and thank you.